good evening to everyone. So because मुझे पता है थोड़े sessions are delay हो रहे हैं, so rather than just like and also we have Kapil, the Art of Living team with us right now. So I'll just do a togetherness kind of good evening to everyone, and it's good to see new faces also today जो बहुत time बाद आ रहे हैं. So I'm so happy, especially Neelu ji. It's good to see you today. And let's start with the session. Basically आप लोग वैसे भी अभी कोविड की बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली कोविड के टाइम पे हमारी लाइफ थोड़ी सी chaotic सी हो गई है. So that's why we thought about bringing it the session of art of living. Can I just ask everyone to please mute themselves? Okay. So because हमारी session थोड़ा आजकल chaotic सा तो हो ही गया है, so we thought about bringing in a session in these changing times, which basically focuses on calmness, relaxation, and bringing the patience inside our own self. And what is better than having a meditation and yoga session for it? So, and definitely with Art of Living as our associate partner with whom we are conducting the session for today. They would be focusing on the art of doing nothing and staying calm, because staying calm has its own beauty, as we all know about it. Apart from that, we also know that meditation is a subtle practice, and it helps us in finding the way and correcting our own mistakes. And not only that, yoga is it provides the patience, the calmness, the relaxation, the everything that goes with calmness is provided by yoga and meditation both. And that is not something new to any one of us here. So when I talk about these three things, when art of doing nothing, yoga, meditation, and everything is put together in a box, then the magical journey starts there. And that's what Art of Living is doing with us today. So before we go on to the session, I'll just give a brief intro about the speaker from Art of Living, Mr. Kapil Arya. So Kapil Arya has more than 8 years of corporate experience in risk management profile. He has worked with prestigious professional services like Ernst & Young and also Grant Thornton International. He is an Art of Living trainer and has taught more than 3,000 students in the past 8 years of being as a trainer. He brings a rich and diverse experience along with his own lightness and humor. That's the way he wanted to put it, like over here. So over to you, Kapil, and looking for a fantastic show with you. And earlier also we had a great show earlier. So I believe today, just looking forward for today's show. So over to you. Kapil, you can unmute yourself. Thank you so much, Sanjana. And I would like to ask you this question. सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कितने लोग आज ब्रश करके आए हैं? हाथ रेज करिए भाई, कितने लोग ब्रश करके आए हैं? अच्छा, बाकी लोग जो हाथ नहीं उठा रहे, अच्छा है ऑनलाइन just now you are talking about just now. Yeah, I am coming to that point only. सब लोग ब्रश करके आए हैं. Just Gurudev Shri Ravi Shankar says a beautiful thing. Like dental hygiene is important, likewise mental hygiene is very, very important. Yeah. So today I thought I'll just share something on meditation, whatever I've learned, jitna mujhe malum hai, I thought I'll just share. So by profession I am into stock market trading and investment. So I take care of the fluctuations in the market and fluctuations of the mind of the people. So I welcome everybody, and I'm so grateful that that Sanjana ma'am invited me for the beautiful session, and where I can just talk about meditation. Yeah. So before I start, I want to share a small story with you. मुल्ला नसरुद्दीन की एक छोटी सी कहानी मैं शेयर करूंगा. एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जो होते हैं वो कहीं तो कुछ तो ढूंढ रहे होते हैं सड़क पर, दिल्ली की सड़कों पर कुछ तो ढूंढ रहे होते हैं. और फिर कुछ उनके 2-3 दोस्त, अच्छे दोस्त आते हैं और पूछते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला तुम क्या ढूंढ रहे हो ये भरी सड़क पे गर्मी में? तो मुल्ला बोलता है मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ, मेरी चाबी गुम हो गई है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ. तो इसके दोस्त अच्छे होते हैं,
जैसे आप जैसे अच्छे लोग हैं, जैसे रंजना जी, सोहन जी, वैसे अच्छे दोस्त अपने मुल्ला नसरुद्दीन के भी थे, वो अच्छे इंसान थे, तो वो भी अपने दोस्त की हेल्प करने लग गए, उन्होंने वो भी ढूंढने लग गए चाबी, और थोड़ी देर हो गई वो चाबी मिली नहीं। और फिर जैसे वहां पे एक एक उनके दोस्त थे, उन्होंने पूछा मुल्ला से, मुल्ला वो चाबी आखिरी बार कब देखी थी और कहाँ देखी थी? तो मुल्ला बोला, चाबी तो मैंने आखिरी बार अंदर देखी थी, घर के अंदर। तो फिर ये इसका दोस्त बोलता मुल्ला का, मुल्ला तो फिर तू बाहर क्यों देख रहा है? Why are you searching for the key outside on the road? Then मुल्ला said a beautiful thing. उसने एक चीज बोली, बोला कि यहाँ पे लाइट है ना, इसलिए मैं इधर देख रहा हूँ। Isn't it? Aren't we doing the same thing in our life? है ना, हम लोग देख रहे हैं खुशी को बाहर, but if you notice it is inside only, right? So आप सब लोगों से एक छोटा सा दरख्वास्त है, मुंह दिखाई की रस्म पूरी करते हैं और अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। या संजना जी, मधु जी, गैलेक्सी 51 जी, वीना जी, रेनू जी, रश्मि जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो also Sanjana ji, can you make me the co-host? I want to screen share something if that is possible. We have changed the settings. You can go ahead and share. Not an issue. अच्छा, ठीक है। Okay. So today I wanted, अच्छा, हिंदी कितने लोग को हिंदी जमता है? हिंदी के लिए 1 दबाएं, और इंग्लिश चलेगा तो 2 दबाएं, और अगर दोनों चलेगा, मिक्स चलेगा तो 3 दबाएं। बताइए, 1 2 3 3 वाले, अरे वाह वाह, अच्छा चलो 3 है ना सब लोग, ठीक है, चलेगा। मैं अभी हरीश जी की बात सुन रहा था कि काफी अभी टाइम हो गया कोविड में बैठे बैठे हम लोग भी परेशान हो गए, है ना, बट यू नो अभी हम लोग कुछ ऐसी टेक्निक सीख सकते हैं जिससे अंदर जाके हम लोग शांत हो सकते हैं। अभी क्या दिक्कत हो रहा है, हम बाहर नहीं जा सकते, है ना, सो वी कैन गो डीप इनसाइड टू नो एंड टू नो दैट वी आर जॉय, ठीक है। पर आप लोगों से अब प्रश्न है, एक चीज आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अच्छा आपको क्या लगता है मेडिटेशन का मतलब क्या है? व्हाट डज मेडिटेशन मीन टू यू? आपको क्या समझते हैं जब मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं? आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा होगा, कुछ लोग तो concentration and awareness to connect with ourselves. रंजना जी सिंह कंसंट्रेशन, कनेक्ट विद आवरसेल्फ, मोहिनी जी सिंह ओके, awareness और क्या? अपना आत्मदर्शन करना, अंदर झांकना, आंख बंद करके किसी ख्यालों में खो जाना, इनसाइड आउट ख्यालों में करना, अंदर की यात्रा करना, इनसाइड आउट इनसाइड आउट, travel within, travel within, travel within. I can never do meditation. Today you नीलू teach जी it. ओके, अपनी आत्मा की यात्रा करना, I state of mind. आत्मा की यात्रा कैसे travel करेंगे? within, हाँ जी, वही ना, I state of मेरे अरे वाह, हेलो, अपने हाँ। अंदर झांककर भगवान को याद करना कोई अपने और अंदर मन को वश में करना। रोशनी दिखाई देनी शुरू करती है। अच्छा ठीक है, आप सब लोग म्यूट कर लीजिए। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आर्या जी। हाँ, मुझे लगता है कि जो ध्यान में जाके और अपनी सांसों के ऊपर ज्यादा हमें जोर देना होता है मेडिटेशन में। बहुत हेलो? सुंदर। हाँ, हेलो? नीता जी, आप हाँ जी, शेयर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मेडिटेशन वो है कि जो भी काम हम करते हैं तो हमारा 100% फोकस उस पर होता है, चाहे आप कुछ भी काम करें, चाहे आप कुकिंग करें, चाहे आप पेंटिंग करें, चाहे आप डांस करें, जब आप 100% उसमें लीन हो जाते हो वो मुझे मेडिटेशन कहलाता है मेरे हिसाब से। ओके, बहुत बढ़िया। आप सब लोग एक बार अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि मेडिटेशन का एक्चुअल मतलब क्या मेडिटेशन मतलब ऐसा कुछ क्या? नहीं ना। there are few myths which are related to meditation, so I wanted to bring that along.
सो पहली चीज आप किसी ने शेयर करा, तो कोई तो शेयर करा था, मेडिटेशन इज कॉन्सेंट्रेशन, isn't it? So you know, मेडिटेशन हम डेफिनेटली अभी करेंगे, बट मैंने सोचा थोड़ा सा जान लेते हैं मेडिटेशन के बारे में। तो मेडिटेशन मीन्स डी कॉन्सेंट्रेशन, इट डज नॉट मीन कॉन्सेंट्रेशन। मेडिटेशन माने डी कॉन्सेंट्रेट करना, इट्स टू रिलैक्स। अगर हम मेडिटेशन में भी फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो रिलैक्सेशन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। हाँ, मेडिटेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीइंग फोकस्ड एंड रिलैक्स एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे फोकस रहना, एक ही टाइम पे रिलैक्स करना। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, हमेशा मस्त रहता है और अवेयर भी रहता है ना। जब छोटे बच्चे थे, आपको पता है हम लोग कितनी बार मुस्कुराते थे। इसका जो जवाब देगा चैट बॉक्स में डालिएगा, नहीं तो काफी क्योस हो जाएगा। एक छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा दिन में कितनी बार मुस्कुराता है? जो इसका आंसर देगा उसको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। चैट बॉक्स में डालिए, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बताइए बताइए। मैं बताऊं? हाँ, 1200 2000 बार दिन में जी जी। अच्छा, ओके। 50 बार बोल रहे हैं एनकी गुप्ता जी, चैट बॉक्स पे बताइए। और बताइए, थोड़े फिंगर्स को योगा कराते हैं, थोड़ा चैट पे लिखिए कितनी बार मुस्कुराता है एक छोटा बच्चा। अनकाउंटेबल नहीं, काउंट तो कर सकते हैं। लगभग एक नॉर्मल बच्चा, जनरल बच्चा कितनी बार दिन में मुस्कुराता होगा? कोई तो बताओ आप लोगों में से। आई एम श्योर कि कुछ लोग के पोते भी होंगे, तो एक आइडिया ले लीजिए। 200 बार नीलू जी बोल रही। नीलू जी आप थोड़ा पास है बट थोड़ा दूर है। ऑलमोस्ट ऑल वेकिंग आवर्स। सो यू नो, एक छोटा बच्चा ना दिन में 400 बार मुस्कुराता है। और वही बच्चा जब वो टीनेजर हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, आप गेस कर सकते हो कितनी बार मुस्कुराता हो। ये मैं फैक्ट्स के, रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ। 18 साल का बच्चा दिन में कितनी बार मुस्कुराता होगा? मोना जी इतना क्यूटली कह रहे हैं, जितनी बार हम मुस्कुराएंगे उतनी बार मुस्कुराता है बच्चा। बताइए ना, 18 साल का बच्चा कितनी बार मुस्कुराता होगा? अच्छा, आप भी ऐसे बैठेंगे तो हम भी ऐसे बैठेंगे। बताइए 18 साल का बच्चा कितनी बार मुस्कुराता होगा? 10 टाइम्स। 15 बार। 15 बार रंजना जी बोल रही है। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। 50 टाइम्स। 50 टाइम्स ना, इतना नहीं हंसेगा। इतना नहीं हंसेगा। ज्यादा फ्रेंड्स मिलेंगे, मुस्कुराएगा तो सही, चाहे आर्टिफिशियली मुस्कुरा ले। तो आपको बता दूं एक 18 साल का बच्चा, लगभग एक रिसर्च बोलता है कि दिन में वो 40 बार मुस्कुराता है। और वही बच्चा जब वो उसका 30 साल का हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, वो कितनी बार मुस्कुराता है? बेचारा नहीं मुस्कुरा पाता। 10 बार। अच्छा, इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई है, ये लास्ट वाला पार्ट मैंने ऐड करा था। यू नो, जैसे जैसे हम एज करते हैं, आप नोटिस करोगे हम लोगों का मुस्कान थोड़ा कम हो जाता है ना। छोटा बच्चा 400 बार और जैसे बड़े होते हैं उतनी बार कम, है ना। बट मेडिटेशन क्या करता है, आप बार बार आपको वो प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। तो ये एक तो पहला चीज हो गया। लोगों को लगता है कि मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेशन, बट मेडिटेशन माने डी कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, दूसरा कई बार हम लोगों को लगता है कि मेडिटेशन माने एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। बट यू नो, मेडिटेशन कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। जैसे सूरज शाइन करता है, जैसे हवा चलती है और सबको हवा देती है, वैसे मेडिटेशन सबको बेनिफिट करता है। इट इज जस्ट लाइक दैट, है ना। और कुछ लोग बोलते हैं मेडिटेशन को हमेशा क्रॉस लेग करके बैठना चाहिए। नहीं, वो भी करने की जरूरत। आराम से अपने सोफे पे बैठिए, इतना महंगा सोफा लिया है, बैठिए आराम से, जहां आपको कंफर्टेबल फील हो वहां पे मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना। और कुछ लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन जो है वो अपने आप को हिप्नोटाइज करने का एक तरीका है। यू नो, हिप्नोटाइज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाता है, बट मेडिटेशन में वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है।
और कुछ लोग बोलते हैं मेडिटेशन माने भागना अपनी प्रॉब्लम से, बट गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं मेडिटेशन क्या शक्ति देता है कि आप मुश्किल सिचुएशन में भी मजबूत रहो। हाँ, कुछ लोगों को लगता है मेडिटेशन बहुत घंटे की बहुत लंबी एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बट जब आप मेडिटेशन सीखते हैं तो 20 मिनट भी आपके लिए कंफर्टेबल है। जैसे कुछ लोग हम आर्ट ऑफ लिविंग में सहज समाधि प्रोग्राम शेयर करते हैं, सुदर्शन क्रिया का टेक्निक है वो करते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने सुदर्शन क्रिया करा हुआ है आज तक? किरण जी ने करा हुआ है, जितेंद्र जी ने भी अच्छा करा हुआ है, हरीश जी ने भी करा हुआ है। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो अरे जी मैंने एडवांस भी किया हुआ है। क्या बात है, इस बहुत अच्छे। मैंने 7 बार एडवांस कोर्स किया हुआ है ऋषिकेश में और बैंगलोर में। अरे वाह, बहुत अच्छे। हमने कभी नहीं किया और ना ही कभी कर पाएंगे क्योंकि हम मेडिटेट नहीं कर पाते। अरे बैठा दिमाग हमारा खूबसूरत है, वो सपने जैसा खूबसूरत होता है मेडिटेशन। हो जाएगा एडवांस मेडिटेशन। हाँ अच्छा, जैसे अच्छा देखो, आप लोग की कितनी फिंगर्स एक बार दिखाओ सब लोग स्क्रीन पे कैमरा ऑन करके। जैसे अभी किसी ने बोला ना मेडिटेशन करना मुश्किल है, हाँ, अपनी फिंगर्स दिखाओ। उर्मिला जी, तेज जी, अपनी फिंगर्स दिखाओ कितनी है, थोड़ा ऐसा वेव करो। हाँ देखो सबके पास 10 फिंगर्स है ना, पर जिसको इन फिंगर्स को चलाना आता है वो पियानो भी बजा सकता है, वो गिटार भी बजा सकता है ना। तो अगर हमारे पास जैसे अगर हमारे पास अगर माइंड है तो मेडिटेट भी कर सकते हैं। अभी हम करेंगे एक्टिविटी, ठीक है। तो मेडिटेशन करने से पहले कुछ योगा आसनास करते हैं, बैठे बैठे डेस्कटॉप करते हैं, डेस्कटॉप योगा करते हैं और फिर ध्यान में उतरेंगे। और उसके बाद आपके कुछ सवाल होंगे तो मुझे अगर आता होगा तो मैं शेयर करूंगा, नहीं आता होगा तो मुस्कुरा दूंगा, समझ जाना, ठीक है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा बैठे बैठे अब हम लोग करेंगे डेस्कटॉप योगा, ठीक है। हाँ, अगर आप बोल रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। थम्स अप बहुत ज्यादा हो गया तो सोचा कि अब थोड़ा अलग करते हैं। भंगड़ा पा लीजिए थोड़ा सा हाँ बोलने के लिए। तैयार हैं? करें? ठीक है, तो आराम से अपनी जगह पर बैठ जाइए। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आएगा मिलके करते हैं, ठीक है। अभी कुछ बोलने की दरकार नहीं। उसके बाद हम डेस्कटॉप योगा के बाद थोड़ी देर बाद हम मेडिटेट करेंगे और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और अब क्या करते हैं, सबसे पहले हाथों को शेक करते हैं। हाथों को शेक करिए। अच्छे से हाथों को हिलाइए। आप इतना तेज हिलाइए कि आपकी हस्बैंड को आपके लिए नई अंगूठी लानी पड़े। मुस्कुराते रहिए, चालू रखिए, चालू रखिए। एंड रिलैक्स। मेरी आवाज, मेरा वीडियो कट रहा है क्या? नो इट्स क्लियर कपिल। इट्स क्लियर ना? मेरा क्लियर है ना? मैं रुक तो नहीं रहा ना? नो नहीं परफेक्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जब कोई गलती होती है क्या बोलते हैं? हे राम। अब थोड़ा सिर को मसाज देते हैं, सर को पकड़ लीजिए, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर को जेंटल मसाज दीजिए। बाल खराब हो रहे हैं तो होने दीजिए, सर सही है तो सब सही है, तो मसाज करिए। उल्टी तरफ, अब बाल ठीक कर लीजिए अगर खराब हो गए हैं तो अच्छे से। अब कानों को खींचिए। हो गया। जनरली जब गलती होती है तो कान पकड़ते हैं, पर अब पहले ही कान पकड़ लेते हैं क्योंकि अवेयरनेस लेवल बढ़ता है कान पकड़ने से। पुल योर लोअर ईयर लोब्स डाउन
बुद्धा की कान इतने बड़े क्यों दिखाते हैं? दैट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ अवेयरनेस। चलिए, दोनों कान को पकड़ के साइकिलिंग भी करते हैं। हमारे कान में सब पार्ट्स का रिप्रेजेंटेशन है, घुमाइए घुमाइए अपने कानों को मुस्कुराते हुए। इतना सीरियसली करोगे तो देखो कुछ नहीं मिलने वाला। ऊपर वाला इंस्टा को खींचिए, मुस्कुरा सकते हैं। आपको याद है हमारे देश में पहले ही पनिशमेंट मिलता था ऐसा कान पकड़ने वाला ना? पर मुस्कुराते नहीं थे। हाँ बहुत साइंटिफिक है ये सब कुछ जो हमारी प्रथा लेके आए हैं हम लोग। अब थोड़ा साइड से कान को खींचिए, करिए करिए, शर्माइए नहीं। कुछ लोगों ने स्कूल में भी करा है बहुत अच्छे कर रहे हैं आप। राजेश जी, सुभाष जी, मंजू जी बहुत अच्छे। मुना जी, और विश्राम करें। आपने देखा होगा गणपति के सामने कई बार साउथ इंडियन टेम्पल में वो टेम्पल्स को नॉक करते हैं। तो टेम्पल्स को नॉक करिए, गणपति के सामने करते हैं ना साउथ इंडिया में। ये ब्रेन सेल्स एक्टिवेट करता है। अपने नकल्स को हिट करिए, आराम से मारिएगा, ज्यादा तेज नहीं। और अगर ज्यादा खोखला आवाज आ रहा है तो मुस्कुरा सकते हैं। बहुत अच्छे। जस्ट नॉक योर टेम्पल्स। If you knock your temples, nobody can knock you down. Stimulate this nerve. This activates the brain cells. And relax. तो कितने लोगों को गुस्सा आता है, टेंशन आता है कभी कभी? कितने लोगों को टेंशन आता है? हाथ रेस करिए, आता है ना? अभी क्या टेंशन होने से सबसे पहले आईब्रोज पे प्रेशर पड़ता है। अभी क्या स्ट्रेटन योर आईब्रोज, सबसे पहले प्रेशर इधर ही पड़ता है। आईब्रोज को सीधा करिए। लेडीज, डोंट वरी अबाउट योर मेकअप। सीधा करिए आराम से। जब भी हम गुस्सा करते हैं 72 नाड़ियों पर फर्क पड़ता है, और जब मुस्कुराते हैं तो सिर्फ 4 मसल्स को फर्क पड़ता है। इसलिए गुस्सा नहीं होना चाहिए। उनको सीधा कर लिया, बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे? दाहिने हाथ को सीधा करिए। बैठे बैठे भी कर सकते हैं। देखिए, बेंड योर फिंगर्स टुवर्ड्स द शोल्डर्स। लेफ्ट हैंड कमर पर, राइट हैंड को स्ट्रेच करिए, जैसे पुश करिए, लाइक देयर इज अ वॉल। पुश करिए, पुश करिए। पर आप जानेंगे आगे तो वॉल ही नहीं है। हम लोग दीवारें बना लेते हैं मन में। कम ऑन, रिलैक्स। दूसरी तरफ टिल्ट योर फिंगर्स टुवर्ड्स योर शोल्डर। थोड़ा दर्द होना चाहिए। दर्द हो रहा है तो अच्छा है। नो पेन नो गेन। पुश करिए, पुश करिए। दीवारों को हटाना ही योग है। लोगों के साथ दीवारें हम खड़ी कर देते हैं। कुछ करिए, जाके देखिए कोई दीवार ही नहीं है। एंड रिलैक्स। चेक करिए, बहुत अच्छे। थोड़ा और तेज।
मुस्कुरा सकते हैं एंड रिलैक्स। आंखें बंद कर लीजिए। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और जाने दीजिए। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। अब ये 3 उंगलियां ले लीजिए और गाल के बीच में रखिए, अपर जॉ और लो जॉ के बीच में। और थोड़ा सा हल्का सा पुश करिए। आपको पता है जब कहाँ पे हमारी मुस्कान छूट जाती है? यहाँ, जब मुस्कुराते नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी नॉट्स होती है, वो बंद ही रखेंगे। हल्का मसाज। जब भी नर्वस होते हैं, आपने देखे पहले दांत को हम कड़कते हैं, दांतों को we clench our teeth, bite our jaws, isn't it? जब भी टेंशन में हो आप इसको करना, बहुत फर्क पड़ेगा। कभी भी कर सकते हैं हम लोग। And relax. You know what? Eyes have lot to tell about our mind. किसी की आंखों में देखोगे तो पता चल जाएगा मन में क्या चल रहा है ना? वो इधर उधर सोचते हैं तो मन, आंखें इधर उधर जाती है ना? तो अब क्या करेंगे? आंखों को रोल करेंगे। आंखों को रोल करिए, पहले क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में, एंड रिलैक्स। क्या करेंगे अब क्या ये ऐसा है, अपने सर के पीछे 2 हाथ को रखेंगे। हाँ, हाथ पीछे ऐसे। अब क्या, आंखों को राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। अब राइट नॉस्ट्रिल को देखिए, अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को देखिए, अब राइट, लेफ्ट, राइट। नोटिस करिए उंगलियों में मूवमेंट हो रहा है, जैसे आप आंखों को हिला रहे हैं। ऑब्जर्व करिए। रोल योर आईज नाउ। रोल करिए आंखों को, करके देखिए। अपना हाथ है, अपना सर है, रखिए बिंदास। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे आंखों को। मुस्कुरा सकते हैं, कहीं अटक रहा है आंखें, वहां पर ब्रेन में कई बार टेंशन हो जाता है। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ स्ट्रेच करिए और बैठे बैठे ही करेंगे। टिल्ट योर फिंगर्स टुवर्ड द बॉडी और अपने हाथों को रोल करिए एंड
और विश्राम करें। अब नेक को राइट और लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। एक बार अब देखिए, अब थोड़ा आसान हो गया। देखिए, अपनी गर्दन को घुमाइए। नहीं? कितने लोगों का इजी हो गया? अब आराम से कर पा रहे हो अपना नेक रोटेशन, हुआ ना? हाँ, अभी क्या करेंगे, हाथों को शेक करते हैं, फिर से हाथों को शेक करते हैं और आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लीजिए। नाउ लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली ऑन आवर चेयर्स। इफ यू वांट टू टेक बैक रेस्ट ले सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा, सिंपल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, कुछ नहीं, जस्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। आंखें बंद रखें। Today we'll do a very short meditation in the voice of Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji for stress reduction. तो आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। कंफर्टेबली इजीली आराम से बैठ जाते हैं। शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें। लेट अस क्लोज आवर आईज, रिलैक्स आवर बॉडी। Let's take your attention to the base of the spine. रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होता है वहाँ अपना ध्यान ले जाते हैं। And honor your own body. अपने ही शरीर को मन ही मन सम्मान करें। आपका शरीर एक अद्भुत देन है जो ईश्वर से मिला हुआ। अब हम लोग ओमकार का ध्वनि करते हैं। ध्वनि करते करते ही उस ध्वनि को पूरे शरीर से सुनते हैं। लेट अस चैंट ओम 3 times. As we chant, let us feel the sound through our whole body. शरीर को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर बॉडी एंड रिलैक्स योर माइंड। मन को भी ढीला छोड़ दे। मन जल से भी तरल है, वायु से भी हल्का है। आवर माइंड इज subtler than water and subtler than air. And so it spreads like water, like spreads across. Let it.
ढीला छोड़ दें। सब तरह की श्रम को छोड़ दें। Let go of all your effort. This moment, there's nothing to do and nothing to know either. इस वक्त जानने के लिए कुछ नहीं है, ना करने के लिए कुछ है। Awareness cannot be kindled through efforts. So just let go all your efforts. Neither can love be achieved through effort. Let go of all your efforts. महत्वपूर्ण चीज जो भी है, जैसे प्रेम है, अबोध है, ज्ञान है, ये प्रयत्न से नहीं मिलेगा, श्रम से नहीं संपन्न हो सकता है। श्रम साध्य नहीं है। कैन नॉट बी अचीव थ्रू एफर्ट। जस्ट लेट गो। सभी प्रयत्न छोड़ दें। प्रयत्न छोड़ते ही मन फैलने लगता है चारों ओर। The moment you stop effort, your mind expands and occupies the entire room where you are in. एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़े। Take another deep breath in and let go. Incoming breath energizes the body and outgoing breath brings relaxation. And this phenomenon is happening all the time. Relax and let go all your efforts. Whatever thoughts are coming in the mind, just let them come. Embrace them all. Good thoughts, bad thoughts. Let them come. Not to stop anything,
जो भी विचार आ रहे हो मन में आने दीजिए, अच्छे बुरे विचारों को आने दें। हमें कुछ भी नहीं करना है, ना इनको रोकना है ना टोकना है। Not to resist any thought, any feeling, let them all come. You just repose in yourself. Become aware of the vast space. Let go all the concepts. This moment, nothing to do and nothing to know. सभी सिद्धांतों को एक किनारे रखकर अपने आप में विश्राम करें। Relax more and more. Any tension, any discomfort you feel anywhere in the body or in any corner of the mind, just let it be. Embrace the discomfort and allow it to be.
Relax and let go. Become aware of the space above your head up to the ceiling of the hall or room you are sitting. सिर के ऊपर जो खाली जगह है वहां अपना मन को रखें. छत तक की दूरी का स्मरण करें. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ओम शांति शांति शांति. Breathe in with a smile and breathe out with a smile. Let the smile percolate to the back of your head. Repose in yourself. अपने आप में विश्राम करें. मुस्कान सिर के पीछे भी हो रहा है ऐसा भाव करें. फिर एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते पूरे शरीर से मुस्कुराइएगा. और धीरे धीरे अपना समय देते हुए, कोई जल्दी नहीं है, आंखें खोल सकते हैं gently and easily. Open your eyes. कैसा रहा? कितने लोग को फ्रेश महसूस हो रहा है? कितने लोग को फ्रेश महसूस? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. अंगूठा दिखाइए, फ्रेश महसूस हो रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल. कितने लोग को लग रहा है मन शांत हो गया? मन शांत हो गया. अंगूठा दिखाइए भाई, अंगूठा दिखाइए. कितने लोगों को लग रहा है कि ऐसे नींद से उठे, इतना आराम मिला? अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे से कर रहे थे. मंजू जी, मैं देख रहा था, हरीश जी, रंजना जी, सब लोग इतने बढ़िया कर रहे थे. अच्छा, कितने लोग को लग रहा है अभी आसपास जो पहले मेडिटेशन करने से पहले जो शोर लग रहा था, अभी बहुत कम लग रहा है वो शोर? आसपास है शोर, पर अभी तो बहुत कम लग रहा है. देखिए, जो लोग, सब लोग हम बोल रहे थे मेडिटेशन कर नहीं सकते, मेडिटेशन हो गया. जैसे प्यार करा नहीं जाता प्यार हो जाता है, वैसे भी मेडिटेशन हो जाता है. ऐसा ही है. बस वही बात है, ध्यान में उतरते हैं तभी वो परिपक्व होते हैं. तो आप आइए, सीखिए ध्यान कैसे कर सकते हैं. हम लोग थोड़ा थोड़ा, हम लोग जैसे शेयर कर रहा था पिछली बार, कुछ लोग करना चाहते थे, आई थिंक रह गया. हम लोग पिछली बार एक सुदर्शन क्रिया करके टेक्निक सिखाते हैं. आप लोग आइए, सीखिए, ध्यान सीखिए, जहां मर्जी से सीखिए, पर सीखिए. तो शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है मन? 2-3 लोग साथ, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा.
2-3 लोग शेयर करना चाहें तो कैसा लग रहा है मन अभी? म्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, बहुत लाइट फील हो रहा है सर। अरे वाह। और मन कैसा लग रहा है अभी? आंतरिक सुखानुभूति हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा। और कौन शेयर करना चाहेगा, बताइए ना। We feel that body has become lighter. वो एकदम रिलैक्स एंड फ्रेश हो गए। हल्का सा लग रहा है बॉडी में, एक रिलैक्स्ड, यानी there is no tension, there is no चिंता नहीं है कोई, रिलैक्स्ड बॉडी। सबसे बड़ा आराम ये मिलता है कि ये करने के बाद शांति बहुत ज्यादा मिलती है। मैं पिछले 10 महीने से, मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था, दिसंबर 2020 से मैं ऑलमोस्ट ये गुरुजी की गाइडेड मेडिटेशन रोज करता हूँ, सुबह भी करता हूँ, रात को भी करता हूँ। और सुदर्शन क्रिया भी मेरी तकरीबन महीने में 20-25 दिन हो जाती है। और संडे का जो सुबह 7:30 से 9 का सेशन है वो मैं हर संडे करता हूँ। तो इससे बहुत मन बड़ा शांत रहता है और किसी किस्म की कोई दिमाग में परेशानी नहीं रहती। ये 7:30 से 9 वाला सेशन ऑनलाइन करते हैं हरीश जी? ये मैम इनके पास ये है कि पहले आपको इनकी सुदर्शन क्रिया करनी पड़ेगी, वो अभी कर रहे हैं। ये अभी 9, 10, 11, 12 को 4 दिन है। अगर आप लोग करना चाहें तो मैं आपके वहाँ फैमिली में वो लिंक डाल दूंगा। हाँ प्लीज लिंक डाल दीजिए। हाँ, मैं बहुत बार किया हुआ है। हाँ प्लीज आइए ना, जो लोग पहले कर चुके हैं वो लोग वो भी कर आइए सकते ना। हैं, वो भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे टाइम शूट करता है बहुत जो आप बता रहे हो। जी जी। लेकिन ये कोर्स जो होगा वो अगर 9, 10, 11, 12 को है, वो शाम को 7 से 9 होगा। अच्छा अच्छा, शाम को है। हाँ, वो 7 to 9 4 दिन सिखाएंगे आपको। उसके बाद हर संडे फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं उनको। हाँ, वो फॉलो तो होता है। जी जी। नीलू जी, आप हमारे पास हम लोग 2 बैचेस में कर रहे हैं। आप चाहें तो मॉर्निंग में भी आ सकते हैं, शाम को भी आ सकते हैं। हम लोग मॉर्निंग में 6 o'clock होता है, वो टाइम मुझे सूट नहीं करता। थोड़ा सा इधर अगर 7 के आसपास हो तो वो मुझे सूट करेगा, वरना मैं शाम को बता दीजिएगा। आप बता दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। मैं और मेरी जो धर्म पत्नी है, तो हम लोग दोनों मिलके भी प्रोग्राम ले रहे हैं 9 तारीख से। तो आप जहाँ मर्जी करेगा, पर जरूर ध्यान सीखिए। शुरू है जब ये तो गोयंका जी का एक होता है ना, वो गोयंका जी का जो आनापान सती का एक गोयंका जी का चलता है, तो उसमें भी सुबह चलता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, आनापान सती। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरा नाम किरण है और 2018 से पहले मुझे कोई पूछता था ना कि सुदर्शन क्रिया कर लो, हैप्पीनेस कोर्स कर लो, तो मुझे लगता था अरे बाबा कहाँ फंसा रहे हैं ये, मैं इतना हैप्पी रहने वाला बंदा, तो मुझे कहाँ भेज रहे हैं। तो मेरी फैमिली अराउंड 20 साल से आर्ट ऑफ लिविंग में है, लेकिन मैं कभी उनके हाथ नहीं आई। 2018 में मेरी भाभी ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया कि तुम कोर्स करो। जब मैं कोर्स करने जा रही थी ना, मुझे लगा था मैं कहाँ जा रही हूँ यार, लेकिन यकीन मानो मुझे इतना चेंजेस आए मेरी लाइफ में कोर्स करने के बाद। मुझे इंसोम्निया था, इंसोम्निया ठीक हुआ। पहले कहते हैं ना इमोशन की हाथ की कठपुतली थी मैं, अब बड़े आराम से मैं सब सिचुएशन कंट्रोल कर लेती हूँ, रिश्ते बहुत अच्छे से निभा लेती हूँ। गुस्सा मैं ये नहीं कहूँगी मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ कम आता है जैसे पहले बहुत आता था, कम आता है गुस्सा। और सबसे अच्छा पता है, स्वामोहिनी हो गई है, अपने आप से बहुत प्यार करने लगी हूँ मैं। और कहते हैं ना अपने आप से प्यार करोगे तभी दूसरों से प्यार कर सकते हो। तो मुझे तो इस कोर्स से बहुत बेनिफिट हुआ 2018 से। अब मुझे 3 साल हो गए हैं, रेगुलर मैं क्रिया करती हूँ। इट इज ऑसम, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप लोग आइए, मैं बता रहा हूँ 2008 से जुड़ी हूँ आर्ट ऑफ लिविंग से, और मैं बहुत अच्छे से सहमत होती हूँ कि जितनी भी परेशानियां आ रही है, मुझे परेशानियां लगती ही नहीं है कि मेरे सिर पर है, और बहुत भारी भारी परेशानियां हैं जो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मुझे तो याद आता है
नीलू जी, एक दफा आपने मेडिटेशन करवाया था हम लोगों को, ये वाला? हाँ, मैंने कराया था, ये वाला जी, नहीं। जी, वो जी। हाँ, थोड़ा सा आपने अपने हिसाब से। वो मेरे जो गुरु हैं यहाँ पर श्री राजेश जी, उनसे परमिशन लेने के बाद मैंने यहाँ पर एमोहा में मेडिटेशन करवाया था, क्योंकि जी हाँ, हर कोई मुझे याद है। करवा सकता है। तो उनसे परमिशन ली थी, फिर मैंने ये करवाया था एमोहा में मेडिटेशन। जी जी जी। तो मैं तो गुरुजी अभी भी एकदम से सामने आए मेडिटेट, मेरे तो आंसू ऐसे आने लगे, मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ उनको देख के। इतनी शक्ति दी है इन 14-15 सालों में, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। बहुत थैंक यू। मेरे तो बस सब कुछ, मेरे घर में जगह जगह कैप्शंस लगे हैं, जगह जगह, मतलब हर बेडरूम में गुरुजी की तस्वीर है, और जो जो उन्होंने कुछ कुछ कहा है कि अपना ही रोना रोते रहोगे, कुछ औरों के बारे में भी सोचो। तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ गुरुजी से। Thank you, Neelu ji, and I hope everyone equally enjoyed the show. It was indeed a very calm, बहुत दिमाग की शांति, बहुत experience. Yes, exactly. Having said that, I would just like अगर किसी को कोई भी कैसे भी questions हैं, you can ask right now. So वो कपिल जी आंसर कर देंगे, whether it's related to yoga, meditation, उनका कोई अपकमिंग शो की तो हम वो डिटेल दे ही देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस सेशन से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, we can just he can take it अभी। कोई कुछ? I think सबको बहुत calming experience हो गया, सब शांत बैठे। ये हमारा एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है कि सब क्वेश्चंस को दूर भगाने का। बिल्कुल, आपने क्वेश्चन लेस कर दिया। ये तो हमारी प्रथा है, इतना सुंदर है जो हम लोग धरोहर लेके आए हैं और है हमारे पास, तो वही है। मैं तो बस आपके सामने बैठा था। Mind has become so free now no question is coming in front of, मन में कोई क्वेश्चन ही आ नहीं रहा, एकदम खाली हो गया माइंड। यही तो खास बात है कि जितने भी प्रॉब्लम वो गायब ही हो जाते हैं। हाँ, राइट। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि मन बहुत शांत रहता है आपका। मैं बहुत होने के बाद भी मैं साल में एक बार एडवांस कोर्स जरूर करती थी लॉकडाउन से पहले, अभी लॉकडाउन के कारण नहीं कर पा रही हूँ, और वो मुझे पूरे साल की फ्रेशनेस देता है। एक बार मैं एडवांस कोर्स करके आ जाती हूँ। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा होता है। पूरे साल के लिए एनर्जी मिलती है मुझे। बिल्कुल। मैं अभी गुरुदेव के साथ थोड़ा सा टाइम मैंने गुजारा, उनके साथ पर्सनली, श्री रविशंकर जी के साथ। मैं बैंगलोर में था अभी 2 महीने, तो 2-3 दिन उनके साथ गुजारा। मैं यही ऑब्जर्व करता था, जब भी उनके साथ कोई आता था प्रॉब्लम लेके, वो प्रॉब्लम ऐसा वो बता ही नहीं पाता था, भूल जाता था क्वेश्चन, इसका मतलब काम हुआ है। बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा इसके बाद एक और मीटिंग है, तो आप लोग जरूर देखिएगा, अपने लिए समय निकालिएगा, ध्यान करना सीखते हैं। So with this, thank you Kapil ji. It was literally a fabulous show for us, and especially आपने जिस तरीके से योगा करवाया ना, मैं योगा तो वैसे सोच रही थी, अनुलोम विलोम ये सब कुछ सोच रही थी। It was such a fun session कि हमने फन करते हुए पूरे अपने बॉडी माइंड को उसमें पूरा रिलैक्स कर दिया, without even thinking कि ये ऐसे होने वाला था। So it was really a fabulous experience for all of us. And I believe beauty ना उस चीज पे लाई करती है जहाँ पे हमें एक calming experience मिलने लगता है. Then we actually come to know that the beauty that lies inside within us and that the beauty that lies outside us. So that whole meditation experience really exposes us to all these things. So thank you a lot, Kapil ji. Looking forward to one more show. हाँ जी मोना जी, हम ये कहना चाह रहे थे कि सबसे अच्छी बात ये लगी कि प्रयत्न करना छोड़ दो फॉर एनीथिंग, कि जो चीज नहीं हो उसके लिए यू जस्ट लीव इट। यही बात एक हमको अच्छी लगी बहुत। वैसे तो यही कीवर्ड, ये लाइन है कि नो डोंट मेक एनी एफर्ट, अपने आप ही होता है, जो हो रहा है वो होने दो। वो गुरुजी ने जो बहुत सिखाया उसमें उनका एक ये भी सेंटेंस है कि जब आपको कुछ ऐसी समस्या आ जाए जो आपको लगता है आप ये नहीं सुलझा सकते, उसको आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप सुलझ जाएगी। लेट इट गो। जी बिल्कुल। हम लोग रहते हैं, वी आर जस्ट थिंकिंग क्या होगा, कैसे करें। तो वो चीज बड़ी अच्छी लगी हमको आज सुनने में और सीखने के लिए कि यू शुड प्रयत्न मत करो, लीव इट। तो वही कर पाते हैं ना, लीव नहीं कर पाते हैं।
तो थैंक यू सो मच। विद द फ्लो, जो हो रहा है लाइफ में उसके फ्लो के साथ जाते हैं। एक्सेप्टेड के लिए सुदर्शन क्रिया that are happening in your life, and as मेरी मम्मी जैसे मुझसे हमेशा कहती है जो होता है अच्छे के लिए होता है, so this is something like we should always accept, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, let's go with the flow, tension इन सबसे तो कुछ होने भी नहीं वाला वैसे भी। So having said that, we are also having one अगर उस समय हुआ था वो ठीक था, हमें बाद में जरूर रियलाइज होता है। Yes, this is fact. exactly. So with this, I would also like to tell everyone we are going to have one more show with Art of Living very soon in September itself, by the end of September. And so looking forward to Couples show as well as Art of Living show in September, and having you all with us again during that time. Apart from that, tomorrow we have 3 shows. अभी उसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ. At 6:30 today is the reason we ended the show earlier, because at 6:30 we have a very special show with Rashmi on cooking, where there would be a competition on the salad making. So अगर आप बना भी नहीं रहे हैं, it's okay, आप दूसरों को observe कर सकते हैं and just be there. It's going to be really fun show, and I believe Rashmi would be waiting for you all to be a part of it. And apart from that, कल सुबह हमारा वही एक फीचर शो होगा डॉक्टर अनुराग के साथ. फिर दोपहर में एक हमारा शो होगा, and then we will meet you at 5 p.m. tomorrow with the art and craft show. So we have another very special show for you tomorrow with art and craft. आपकी यारेम्स आपको details भेज देंगे. We are going to make mandala art tomorrow. So get your pencils, paper, pen, everything ready for tomorrow. It's going to be a session, and one of our own NOK, Millie Bhargav, is going to take it. So with this, I would just like to say goodbye. Thank you everyone for attending with us today. Thank you. Bye. Thank you. Bye.